السلام علیکم. واہ استور واہ. آج آپ کا جوش و جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتنا بڑا استقبال اتنے چھوٹا گاؤں میں دیکھ کر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. مبارکباد مبارکباد. آپ جیت چکے ہو، جیت چکے ہو، جیت چکے ہو. استور کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. استور کے بچہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، بھٹو شہید کے ساتھ دیں گے، بی بی شہید کے ساتھ دیں گے. تیر پہ تھپا لگا کے عوامی حکومت منتخب کریں گے. ساتھیوں، یہ میرا گلگت بلتستان کا تیسرا دورہ ہے. ہم پہلے یہاں استور بھی آئے تھے، پہلے بھی آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا تھا، اور کل ہم استور 1 میں جلسے کر رہے تھے، آج ہم استور 2 میں جلسہ کر رہے تھے. ہم گلگت بلتستان کا چپا چپا پر پہنچ رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچ رہے ہیں. بھٹو شہید کے چاہنے والے اور بی بی شہید کے چاہنے والے کے دروازے تک پہنچ رہے ہیں. آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ کل بھی آپ بھٹو کے ساتھ تھے، آج بھی بھٹو کے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی جیسے کل آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا مستقبل طے کیا تھا، گلگت بلتستان کا تاریخ بنا دیا تھا، اب بھی بھٹو کا جماعت کے ساتھ تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے وہ کام کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ یاد رکھیں گے. ماضی میں بھی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ایف سی آر کا خاتمہ کیا. آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ ایک راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ ایک سیاسی اور جمہوری آزادی اپنے لیے چھینا. آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے اپنا وزیر اعلیٰ بنایا، اپنا پروونشل اسمبلی کھڑا کر دیا. آپ نے گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا، نام دلوایا. یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. اور اب ہم اس آخری مرحلہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ وعدہ جو بھٹو شہید نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کیا تھا، میں نے اور آپ نے مل کے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اس سلیکٹریٹ کا کیا پتا استور کے عوام کے بارے میں، گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں. ہمارا تو رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، 3 نسلوں کا رشتہ ہے. ہمارے پاس سیاسی کارکن ہے، جیالے ہے، کوئی کھلاڑی نہیں ہے. آپ شودا کے وارث ہو، آپ شودا کے اور غازیوں کے سرزمین ہو. استور کے نوجوان نے 18 اکتوبر کا ساز کے بم دھماکوں میں شہادتیں قبول کی ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں مایوس کیا ہے. عمران کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے، سلیکٹڈ سوچ سکتا ہے، یہ بھی بڑا خبر ہے، مگر وہ سوچ رہا ہے. عمران سوچ رہا ہے کہ میں اب بھوری صوبہ بناؤں گا. عمران تو بہت دیر اس بات پہ آگے ہو. صدر زرداری صاحب نے ہمیں 2009 میں تو بھوری صوبہ دے دیا تھا، وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا تھا، اسمبلی دلوا دیا تھا. آپ ابھی تک سوچ رہے ہو، آپ ابھی تک سوچ رہے ہو. گلگت بلتستان کو صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے. اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پورے پاکستان سرزمین بے آئین تھا، ہم نے 1973 کا آئین دلوایا. آج گلگت بلتستان
सरजमीन बेआइन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। वो तो हमारा मंशूर है ही है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मेरे 3 नारे हैं, 3 वादे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक-ए-हकमियत दिलवाऊंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक-ए-मलकियत दिलवाऊंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक-ए-रोजगार भी दिलवाऊंगा। ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा मंशूर है। किसी और जमात के मंशूर में ये वादे आपके लिए नहीं है। सिर्फ एक जमात है जो हुकूक दिलवाती है, सिर्फ एक जमात है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप पूछे बाकी सारे के सारे जमातों से, आप पूछे इन सब से कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को दिया क्या है, आपने यहां के गरीब अवाम को दिया क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो सिर्फ अपने पिछले दौर में, सदर ज़रदारी के दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। आपने क्या किया है? पूछे इनसे कि आपका हुकूमतें आते रहते हैं। पूछे बाकी जमातों से तूने हमारा तनख्वाह में कितना इजाफा किया है। पूछे इनसे कि हमारा बुजुर्गों का पेंशन्स में कितना इजाफा किया है। अगर इजाफा हुआ है तो सिर्फ पीपी ने किया है। सदर ज़रदारी के दौर में हमने तनख्वाह में 150% इजाफा किया। हमने अपना जवानों का, अपना फौज का, अपना सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। हमने अपना बुजुर्गों के लिए पेंशन्स में 100% इजाफा किया। आपने बाकी सबके हुकूमत भी देखे हैं, इन्होंने 1% का इजाफा भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि अगर आप गरीब के साथ देंगे, अगर आप मजलूम के साथ देंगे तो सब तरक्की कर सकते हैं, मुआशत में सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मगर आप इमरान की तरह, बाकियों की तरह तनख्वाह में कटौती करके, पेंशन्स ना देके, बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देके, बड़े बड़े एमनेस्टी स्कीम्स अमीरों के लिए दिलवा के मईशत में तरक्की नहीं हो सकता। मईशत में तब तरक्की होती है जब भुट्टो शहीद की तरह अब गद्दम में सब्सिडी दिलवाए ताकि यहाँ के गरीब अवाम खाना खा सके, भूख से आजादी दिलवा सके। तरक्की तब हो सकती है, तरक्की तब हो सकती है जब आप इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबे लेकर आए, जिसके तहत हर गरीब औरत की जेब में पैसा मिले ताकि वो भी अपना घर चला सके, वो भी मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। और अब पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। आप जानते हो कि हर तबका सरापा एहतजाज है। यंग डॉक्टर्स से लेके लेडी हेल्थ वर्कर्स तक एहतजाज कर रहे हैं, नौजवानों से लेके बुजुर्ग पेंशनर्स तक एहतजाज कर रही है, गरीब मजदूरों से लेके ताजरों तक एहतजाज कर रहे हैं।
یہاں تک کہ ہمارا کسانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام پہ جو تباہی ہے اس سے بچانا ہے, اور اس تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے سب 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دینا ہے. ہر ضلع سے, ہر علاقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو, گلگت بلتستان کے غریب بزرگ مزدور کسان کو ان ظالم حکمرانوں سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھیوں, میرے لیے صرف آپ ہو, میرے ساتھ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اکیلے اپنے پارٹی تنظیم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جمہوری طریقے سے ہم اپنا کیمپین چلا رہے ہیں. دوسری طرف کٹ پتلیوں ہے, ان کے پاس اقتدار ضرور ہے مگر عوام ان کے پاس نہیں ہے. استور کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ہر دن ایک نیا کیمپین کے لیے کوئی نیا نمائندہ ان کے طرف سے آ جاتا ہے, کوئی نیا کٹ پتلی آ جاتا ہے. پہلا ایک گندا وزیر تھا, وہ پھر رہا تھا جگہ جگہ. گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا جو وزیر ہے جگہ جگہ پہنچ رہا ہے, 2 سال وزیر رہا ہے. اب گلگت بلتستان کا خیال آیا ہے, اب الیکشن کے دوران یاد آیا ہے. پوچھو ان سے 2 سال میں کتنے روزگار دلوایا آپ نے, 2 سال میں کتنے منصوبے دلوائے آپ گلگت بلتستان کے عوام کو. ایک اینٹ بھی, ایک منصوبہ بھی, ایک ہی انوگریشن نہیں ہوا. 2 سال کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کوئی علاقہ تھا, اور الیکشن کے دوران ایک پر ایک وہ قانون کے خلاف ورزی کر کے یہاں آ رہے ہیں, پیسہ بانٹ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے, اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کٹ پتلی وزیر آئیں گے, آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی بھول ہے, ان کے سمجھ سے باہر ہے. گلگت بلتستان کے عوام اور خاص طور استور کے عوام بکنے والے نہیں ہیں. آپ تو غیرت مند لوگ ہیں, آپ وفادار لوگ ہیں, مگر میں آپ کو اجازت اس حد تک دیتا ہوں, آپ ان سے پیسہ ضرور لے لو مگر وہ تیر کو دے دو. پھر کٹ پتلی وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے, اس کو بھی اچانک گلگت بلتستان کا تب خیال آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے, اچانک آ جاتا ہے. استور تک تو پہنچا ہی نہیں, ہیلی کاپٹر میں پھر کے واپس چلا گیا تھا. جہاں وہ پہنچا تھا وہاں وہ کہتا ہے, میں پیکج کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. سو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے میں پیکج نہیں اعلان کر سکتا. بھائی آپ 2 سال سے سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو, الیکشن سے پہلے کس نے آپ کو روکا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج دلوا دے؟ اپنے الیکشن سے پہلے بھی نہیں دیا اور آپ الیکشن کے بعد بھی نہیں دیں گے. ہم آپ کو جانتے ہیں. آپ تو پختونخوا کو چھوڑے, میاں والی سے پوچھے, میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا گیا ہے. کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے, سبسڈی دیا ہے تو صرف پی پی نے دیا ہے. اب یہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں بری صوبہ. ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے مگر باقی جماعتوں یہ چاہیں گے کہ اگر صوبہ ملے تو سبسڈی بھی واپس لو, اگر صوبہ ملے تو ٹیکس بھی لگا دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے,
मैं सूबा भी दिलवाऊंगा, सब्सिडी का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, सब्सिडी का तहफ़्फ़ुज़ का मैं आपका कोटा में इजाफा दिलवाऊंगा, आपको टैक्स से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाऊंगा। वो तो सूबा देने से पहले नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे मजीद टैक्स लगा दो। हम आपका टैक्स नोटिफिकेशन को भी नहीं मानते हैं, और आगे जाके भी आपने यहाँ के अवाम को, जिसको आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, अब आपको सूबा बना के उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, इनको इंकरेज करना पड़ेगा, उनको ज्यादा मुआशी पैकेजेस दिलवाने पड़ेंगे, मेन स्ट्रीम करवाने पड़ेगा, फिर हम बात करते हैं टैक्सेस पे, फिर हम बात करते हैं बाकी चीजों पे। मगर ये जो गंदम पे सब्सिडी है, जो तेल पे सब्सिडी है, ये भुट्टो शहीद के कारनामे है। हम आपको ये नहीं छीनने देंगे, कभी नहीं छीनने देंगे। आप सुबह के नाम पे यहाँ के अवाम पे हुकूक पे डाका डालना की कोशिश करेंगे, हम आपके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। साथियों, हमने खास तौर पे स्टोर के लिए भी मंसूबे सोचे हैं। सदर ज़रदारी ने पहले से जो शॉर्टर टनल का बुनियाद रखा था, वो तो आप ही के लिए था। उसने आपका फासला इस्लामाबाद से हो या कश्मीर से हो, उसको कम करना था, लेकिन अफसोस के साथ पिछले हुकूमत पे भी वो उस पे काम नहीं हुआ, और जो आज का हुकूमत है उन्होंने बिल्कुल ही इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे ये वादा करना है कि जो मंसूबा सदर ज़रदारी ने शुरू किया था, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उसको मुकम्मल कर देंगे, और 6 घंटों के अंदर ही अंदर आप इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। जो बोबिन स्कर्दू रोड का हमीद साहब ने जिक्र किया था, इंशाअल्लाह वो तो आपका अपना सूबाई हुकूमत बनाएगा, और आपका फासला स्कर्दू के साथ भी कम होगा। अगर सदर ज़रदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आया था, तो हमने बेनज़ीर मजदूर का सिंध में शुरू किया है, जो हर मजदूर के लिए होता है, वो हर मजदूर के लिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी, ज़राई मजदूर के लिए भी, सारे के सारे मजदूरों के लिए ये कार्ड होगा। और इंशाअल्लाह ताला जब आप गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, 15 नवंबर को आपका अवामी हुकूमत आएंगे, तो फिर हम गिलगित बल्तिस्तान के हर मजदूर को बेनज़ीर मजदूर कार्ड पहुंचाएंगे। साथियों, हमने सिंध में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया है। मुफ्त इलाज दिल के मरीज, मुफ्त इलाज दिल के मर्ज के लिए, मुफ्त इलाज किडनी के लिए, मुफ्त इलाज लिवर के लिए, और इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत आ रही है। 15 नवंबर को अवामी हुकूमत बनेगी, और हम मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स, दिल के मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाएंगे। हर जगह पे उनके सेंटर्स होंगे, ताकि हम दूर दूर इलाके तक पहुंचकर मुफ्त इलाज गरीबों तक पहुंच सके, हमारा बुजुर्गों के दरवाजे तक पहुंच सके। साथियों, हमने आपको हक हकमियत भी दिलवाना है, मगर साथ साथ हमने हक मलकियत भी दिलवाना है। और जब हम हक मलकियत पर बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी ज़मीन के मालिक खुद बने, मगर वो ना सिर्फ अपना ज़मीन के मालिक बने, मगर जो भी मादनियात इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं उनका भी मालिक बने। जैसे
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया। इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ देंगे, 15 नवंबर को तीर के साथ देंगे और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना जमीन का मालिक बना के रहूंगा। साथियों, मेरे पास मेरे कारकुन हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खड़े हैं, इनके पास हुकूमत के हथकंडे हैं। ना सिर्फ यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस तादाद में आपके साथ खड़े हैं तो कोई कठपुतली हुकूमत, चाहे वो यहाँ सूबा में हो या वफाक में हो, वो अवाम के हक पे हम डाका नहीं डालने देंगे। ये जरूर अफसोस की बात है, जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार बनना था, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, वो आपके अवाम के सहूलतकार नहीं बना हुआ है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार नहीं बना हुआ है। वो जो हमारा आपका इलेक्शन कमिश्नर है, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देना चाहिए था। मगर क्या करता, वो तो इस्लामाबाद पहुंच के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, हमारे पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मोहब्बत देख के, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जोश और जज्बा देख के, खपलू से लेके अस्तौर तक हमारा इस्तकबाल देखे घबरा चुके हो कि आपका चुना हुआ नुमाइंदे हार रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहां ड्यूटी देना चाहिए था, यहां आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। किससे हुक्मनामे आप ले रहे थे इस्लामाबाद में? किस हुकूमती इदारे से आप मिल रहे थे? आपका क्या काम होता है इस वजीर के साथ? एजीके और जीबी का वजीर से, वफाकी वजीर से इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम होता है? उनका मुलाकातें क्यों हो रहे हैं? उनका बातचीत क्यों हो रहा है? हमारा कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, हमारा कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है। जिनके पास पब्लिक ऑफिस है उनके खिलाफ आप क्यों नहीं करते? वजीर, हुकूमती वजीर जिनका जिम्मेदारी है गिलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर का, उनको आप नहीं रोक सकते। वो पैसा बांट रहे हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। वजीर आजम इलेक्शन के दौरान पहुंचता है, तकरीर करता है, उसको रोकने के बजाय इलेक्शन कमिश्नर उसका दफा करता है, वजीर आजम की धांधली करने की कोशिश का सहूलतकार बन जाता है। लेकिन जहां उनके पास कठपुतली वजीर है, जहां उनके पास कठपुतली इदारे हैं, जहां उनके पास कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर तक है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान खड़े हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों भी खड़े हैं, औरतों भी खड़े हैं। तुम क्या चीज हो? इंशाअल्लाह ताला करो जो आपने करना है, करो जो आपने करना है। 15 नवंबर से 15 नवंबर पे हर पोलिंग स्टेशन से, हर इलाका से तीरे निकलेगा, भुट्टो का निशान जीतेगा, तुम कहीं का कहीं नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह
15 नवंबर को आप हमें भारी अक्सरियत दिलवाएंगे ताकि मैं आपका सही नुमाइंदगी कर सकूं, ताकि मैं आपको हकमियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक मलकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं यहाँ के बच्चों को हक रोजगार दिलवा सकूं। आप 15 नवंबर को 3 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत दिलवाएंगे। 15 नवंबर को अस्तौर के अवाम हमारा अब्दुल हमीद साहब को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरे साथ हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत अस्तौर की होगी, जीत भुट्टो शहीद और बीबी शहीद की होगी। जिए भुट्टो।